वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी ऑन फ्राइडे vowed the Islamic Republic would not back down in the face of biggest protest in years as authorities pressed an internet blackout as part of a crackdown that has left dozens dead. Internet monitor NetBlocks said authorities had now imposed a nationwide internet shutdown for the last 24 hours that was violating the rights of Iranians and masking regime violence. The protests late Thursday were the biggest in Iran since 2022-23. Rallies nationwide sparked by the death in custody of Mahsa Amini after she was arrested for allegedly violating the Islamic Republic's strict dress code. But Khamenei struck a defiant tone in his first comments on the escalating protests since January 3rd, calling the demonstrators vandals and saboteurs in a speech broadcast on state TV. ये जब से शुरू हुआ है पहली बार ये टीवी पर आए और उन्होंने बोला है कि नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग वैंडल्स हैं, यानी कि वैंडलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तोड़फोड़ कर रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं, दे आर सैबोटियर्स, और ये सब इन्होंने बातें बोली हैं। क्रैकडाउन बहुत भारी तरीके से शुरू हो गया है, जो सड़क पे आएगा उसको देख लेंगे। इस लेवल का क्रैकडाउन शुरू हो गया है और सुनने में आया है कि इसमें ईरानियन आर्मी अब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई है। ईरान राइटर्स वांट टू प्लीज ट्रंप, ही शुड फोकस ऑन यूएस प्रॉब्लम्स। अब ये डायरेक्ट मैसेज टू ट्रंप भेजा है कि तुम क्यों यहां पे इंटरफियर कर रहे हो ईरान के मामले में, और हम लोग बैक डाउन नहीं करेंगे, नेशनल यूनिटी को बरकरार रखेंगे, मर्सनरीज फॉर फॉरेनर्स बीच में लोग आ रहे हैं और आउटसाइड फोर्सेस के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं यहां पे। बेसिकली गद्दार कह रहा है, जो लोग सड़क पे आ रहे हैं उनको कह रहा है गद्दार है, ये बाहर की फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं। और टू प्रेसिडेंट ट्रंप, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स इन आवर ओन कंट्री, ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे खुद के देश में इतनी प्रॉब्लम है, तुम उन पर फोकस करो, ईरान के पीछे तुम क्यों पड़े हो। तो ये सारी की सारी बड़ा लंबा चौड़ा इसने भाषण दिया खमेनी ने, लेकिन ये 4-5 पॉइंट यही हैं इसके कि बाहर से साजिश हो रही है, हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है, हमारे लोगों में से कुछ गद्दार हैं जो ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही मुल्क में आग लगा रहे हैं, और फिर ट्रंप को ये कहते हैं एंड में कि साहब तुम्हारे खुद देश में इतनी प्रॉब्लम है, तुम अपने देश की प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम ईरान की तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हारा क्या मामला है ईरान का, ये इनका कहना है। Iran's exiled crown prince rises as a figure in protests decade after leaving his homeland. Reza Pahlavi has been in exile for nearly 50 years. His father, Iran's Shah, was so widely hated that millions took to the streets in 1979, forcing him from power. Nevertheless, Iran's crown prince Reza Pahlavi is trying to position himself as a player in his country's future. अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि रजा पहलावी है जो इनके फादर हैं, उनको बहुत हेट किया जाता था, बड़ी नफरत थी, तो लोग सड़क पे आ गए। ये इस्लामिक जो रेवोल्यूशन हुई थी, खुमैनी जो ओरिजिनल था, खुमैनी, ठीक है जी, तो खुमैनी जब आया था, ये तब की बात कर रहे हैं 1979 की, जब शाह को पता लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तो शाह ने हवाई जहाज में सब चीजें डाली और शाह हो गया फुर, अमेरिका जाके बैठ गया, ठीक है ना। Pahlavi successfully spurred protesters onto the streets Thursday night in a massive escalation of the protests sweeping Iran. Initially sparked by the Islamic Republic's ailing economy, the demonstrations have become a serious challenge to its theocracy, battered by years of nationwide protests and a 12-day war in June launched by Israel that saw the US bomb nuclear enrichment sites. अच्छा, ये रजा पहलावी का डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज है दोस्तों। Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention. Ali Khamenei, fearing the end of his criminal regime at the hands of the people and with the help of your powerful promise to support the protesters, has threatened the people on the streets with a brutal crackdown, and he wants to use this blackout to murder these young heroes. I have called the people to the streets to fight for their freedom and to overwhelm the security forces with sheer numbers. Last night they did that. Your threat to this criminal regime has kept the regime's thugs at bay, but the time is of the essence. The people will be again on the streets in an hour. I am asking you to help. You have proven, and I know you are the man of peace and man of your word. Please be prepared to intervene and help the people of Iran. अब ये खुला बोल रहा है कि भाई आपने वादा करा था, आपने वादा किया था। ये डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा है रजा पहलावी, और रजा पहलावी अब ये बोल रहा है कि साहब मैंने बोला कि सड़क पे आओ, मेरे कहने पे लोग सड़क पे आ गए, लेकिन अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो हमें मोमेंटम मिला है, ये जो हमें पूरा का पूरा मोमेंटम मिला है, ये मोमेंटम इस तरीके से है कि जैसे अब अगर हमने बाहर से इनकी मदद नहीं करी, यानी कि अमेरिकन फोर्सेस अगर नहीं घुसी, ईरान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस नहीं घुसी, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत मुसीबत आ जाएगी। लिहाजा आप प्लीज इंटरवीन करिए। टाइम इज ऑफ द एसेंस, समय बीता जा रहा है, घड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। दिस इज व्हाट रजा पहलावी वांट्स टू से। दोस्तों, रॉयटर्स से खबर ली है, न्यू ट्रंप वार्निंग एज ईरान कट्स इंटरनेट। यहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप issued a new warning to Iran's leaders on Friday as videos showed anti-government protesters
Protests raging across the country. ठीक है ना? Trump, who bombed Iran last summer, warned Tehran last week. US could come to the protesters' aid and issued another warning on Friday. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now. Rights group have documented dozens of deaths of protesters nearly 2 weeks. तो कह रहे हैं 65 लोग मारे गए हैं. ट्रंप ने फिर एक बार धमकी दी है. दोस्तों, ये जो स्लाइड है, मैं चाहता हूं आप जरा ध्यान से सुनना. मेरा एक पैगाम है, मेरा एक मैसेज है ईरान के लोगों के लिए. मैं वो भी दूंगा और मैं फिर आपको ये बताऊंगा. इसमें ये जो है ना, ये amid mass Iran protests, Trump takes cautious approach. US President Donald Trump is treading carefully around the issue of mass protests in Iran amid some US predictions that the unrest may not be widespread enough to challenge Tehran's clerical establishment. In recent days, Trump has warned Iranian leaders that they will be held to pay if they crack down on protest movement, but he has otherwise adopted a wait-and-see attitude. Human rights groups have alleged that security forces have killed and injured numerous protesters, but in an interview with Fox News host Sean Hannity on Thursday, Trump only referred to demonstrators being stormed on in huge crowds and security forces shooting the hell out of people in the past. The protests are the latest in a series of major demonstrations. Earlier this week, US intelligence community assessment said that the protests were not big enough to challenge the leadership of the supreme leader Ali Khamenei, according to. देखिए ना दोस्तों, ये सारी की सारी चीज. अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहा है कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड और हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे. ये खमेनेई को धमकी दे रहा है. लेकिन यहां पे ये भी कह रहा है कि, और यूएस इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं है कि हम लोग बीच में आ जाएं. मैं ईरानियों को एक बात बोलना चाहता हूं. टू द पीपल, टू द ब्यूटिफुल लवली पीपल ऑफ ईरान, आई वांट टू से समथिंग. डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट योर फ्रेंड. अमेरिका इज नॉट योर फ्रेंड. राइट? Why do you think Donald Trump wants to help you? Why? So there are basically 3 reasons. Number 1, अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए जिससे कि इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट थ्रेटन हो. क्यों? क्योंकि नेचुरल पार्टनर जो है वो इजराइल है और पूरे मिडिल ईस्ट में दुनिया भर का तेल भरा हुआ है जमीन के नीचे तेल. पहली चीज. दूसरी चीज, आप ये देखिएगा, मिडिल ईस्ट के पास जितना तेल है पूरे इलाके के हिसाब से और दुनिया में कहीं नहीं है. ईरान के पास भी तेल है. इस आदमी ने अभी क्या करा था? डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लिया और फिर बोला कि ये तो तेल के लिए. अब वो ड्रग्स की बात कर रहा है. क्या वो ड्रग्स की बात कर रहा है? दोस्तों, 1 हफ्ता हो गया लगभग ऑपरेशन को. वेनेजुएला का ऑपरेशन, जिसने बोला था ड्रग्स भेज रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है. इसने ड्रग्स का कुछ करा अभी तक? कोई एक बयान आया कि अब हम ऐसे ड्रग्स एक बहाना था. कोई ड्रग्स का चक्कर नहीं था. सब झूठ बोल रहा है. ये फ्रॉड है. 2 नंबर का काम करा इस आदमी ने. ये वेनेजुएला के ऊपर काबिज हो गया. ये कह रहा है कि हम तुम्हारा तेल ले लेंगे, जाओ भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, ले लिया तुम्हारा तेल. यही चीज आई वुड लाइक टू टेल द पीपल ऑफ ईरान दैट इफ यू वांट योर फ्रीडम यू हैव टू फाइट फॉर इट योरसेल्फ. दिस मैन if not worse is at least as bad as Khamenei. I'm telling you because he does not wish well for you. इसका क्या है कि ये बम मार के अगर खमेनेई भाग जाता है, ठीक है, आपने इस पे डिपेंड करा. आपने बोला कि नहीं यार, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो बड़ा मदद करेगा, बड़ा अच्छा आदमी है. कोई अच्छा आदमी नहीं है. जब आपको इसकी मदद चाहिए होगी ये गायब हो जाएगा. ये पहला प्रेडिक्शन है मेरा. दूसरा प्रेडिक्शन है, even if he intervenes, let us say he intervenes and the US may well attack. Let us say the US attacks. What will happen? Let us say there is a regime change. ठीक है? Let us say that the Shah of Iran takes over. Raza Pahlavi becomes the Shah of Iran. He takes over. Then what will happen? Donald Trump will say, I helped you. I want your oil. ये तो बिजनेसमैन आदमी है. He will control Iran sitting in Washington exactly like Khamenei controls Iran sitting in Tehran. He's just the white version of Khamenei. ठीक है ना? इसने यही करना है. इसने पूरा का पूरा वेनेजुएला का जो तेल है अपनी जेब में डाल लिया. ये ईरान का तेल भी जेब में डालेगा. I want to tell the people of Iran that अगर आपको अपना मुस्तकबिल कंट्रोल करना है, जो आप कहते हैं कि बिना खमेनेई को हो, तो वो बिना ट्रंप के भी होना चाहिए. क्योंकि ये आदमी अगर मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और आपने इसका हाथ पकड़ लिया, तो भाईजान अपनी उंगलियां गिन लेना. उसके बाद आपने ट्रंप का हाथ पकड़ा है कि 5 उंगलियां इसके हाथ में दी थी, 5 ही हैं कि सिर्फ 2 ही बाकी हैं. ये देख लेना, ट्रंप की खासियत है. He will help you and you will regret why you took his help. That is what Donald Trump is. हो सकता है ये बॉम्ब कर दे, हो सकता है तख्ता पलट करवा दे. उसके बाद क्या करेगा? Be very careful.